Hello, Assalamu alaikum. Dear viewers, how are you? This is your presenter Smina. Today we will discuss the basic coronary angiographic views. वो कौन कौन से व्यूज़ होते हैं जो कि कॉर्नरी एंजियोग्राफी करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं और जो हमारे कंसल्टेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं कॉर्नरी एंजियोग्राफी के लिए. First of all, we will see here what is the coronary anatomy. In coronary anatomy, the left and right coronary cusp give rise to their respective coronary arteries. The major epicardial vessels are the left main coronary artery that divides into the left anterior descending artery and the left circumflex artery in the right coronary artery. And here we can see the coronary arteries. These are the left coronary arteries. Here is the LED, left anterior descending artery, and this one is the left circumflex artery. Here is right coronary artery, RCA, and next left main coronary artery. The left main coronary artery originates from the left coronary cusp and bifurcates to give rise to the left anterior descending and left circumflex. Occasionally, a third branch vessel, the ramus intermedius, arises from the left main coronary artery. In small number of the patients, the two major branch vessels arises from the separator region. इसमें हमें बताया जा रहा है कि हमारे पास जो लेफ्ट सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स का, या फिर जब हम कॉरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं तो उसमें हमें विजुअलाइज कर सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग एंड लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स दो कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं और कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें रेमस इंटरमीडियस आर्टरी भी इन बिटवीन अराइज हो रही होती है. और कुछ इन स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट्स, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके सेपरेट रीजन्स होते हैं अराइजेस फ्रॉम द मीन्स ऐसी आर्टरीज यानी कि हम लोग एक ही ओरिजिन होता है हमारे पास लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग के लिए एंड लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स के लिए, बट कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके टू ओरिजिन्स होते हैं. मीन्स लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग का सेपरेट ओरिजिन होगा और लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स का सेपरेट ओरिजिन होगा. Then about the right coronary artery. Right coronary artery arises from the right coronary cusp and follows the right AV groove. The most proximal branches of the RCA are the conus branch, which supplies the right ventricle outflow tract, and the branch that supplies the sinoatrial node, 60% of the patient. RCA gives off the posterolateral and posterior descending branch at the crux cortex. राइट कॉर्नरी कस्प से अराइज क्या हो रहा है? RCA, राइट कॉर्नरी आर्टरीज. लेफ्ट कॉर्नरी कस्प से क्या हो रहा था? लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरीज. इन राइट कॉर्नरी कस्प से क्या अराइज हो रहा है? राइट कॉर्नरी आर्टरीज. एंजियोग्राफिक व्यूज. एंजियोग्राफिक व्यूज क्या होते हैं और ये किस तरह से डिसाइड किया जाता है कि आरओ क्या है, एलओ क्या है, ईपी क्या है, क्रेनियल क्या है और कॉर्डल व्यू कौन सा है? Here we can see anatomic landmarks formed by the spine, catheter and diaphragm provide information to which tomographic view from which the image is obtained. In the LA view, the catheter and spines are seen on the right side of the image, while RO, they are found on the right. PA image places these landmarks in the center. Cranial can usually be distinguished from the caudal angulation by the presence of the diaphragm. For the cranial imaging, the patient should be asked to inspire to remove the diaphragmatic shadow from the image. Here are some views like anterior-posterior, iliocranial, iliocaudal, iliocranial, left anterior oblique towards cranium, left anterior oblique towards caudal. This one, this is एपिकॉर्डल व्यू, जिसमें सी आर्म जो है रोटेट होकर पेशेंट की कॉर्डल साइड पे होगा और
बिल्कुल एपी होगा, कोई एंगुलेशन राइट और लेफ्ट पे नहीं होगी. इट मीन्स दिस इज एपिकॉर्डल व्यू. एपिकॉर्डल व्यू में हमें इस तरह से वेसल्स नज़र आ रही होती हैं, एलईडी देन सर्कमफ्लेक्स. दिस वन इज एपिक्रेनियल व्यू. एपिक्रेनियल में एपीडी पेशेंट के क्रेनियम की तरफ, पेशेंट के हेड की तरफ होगा और ये सियाम हमें नज़र आ रहा है. ये व्यू हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा. एपिक्रेनियल में एलईडी जो है लेफ्ट इंटीरियर सेंडिंग आर्टरी है, वो आपको इन फ्रंट पे नज़र आएगी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स बिल्कुल ऊपर चले जाएगी. दिस वन इज एलियोक्रेनियल व्यू. सियाम हमारा जो है एपीडी जो है पेशेंट के लेफ्ट इंटीरियर ऑब्लिक पोजीशन में होगा. दिस इज लेफ्ट इंटीरियर ऑब्लिक cranial view. And here this is very important view, aliocaudal oblique spider. इस व्यू को स्पाइडर व्यू मोस्टली बोला जाता है. इसमें ऐसा होता है कि जो वेसल्स होती हैं बिल्कुल स्पाइडर की तरह हमें नज़र आ रही होती हैं. लाइक लेफ्ट मेन है, एलईडी है और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स है. ये बिल्कुल इस तरह से खुली हुई होती हैं जस्ट लाइक स्पाइडर. दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फेवरेट व्यू ऑफ आवर cardiologist to visualize the left main in the ostiums of the LED in the left circumflex. Here we can see the lateral view. And this one is ariocaudal, right anterior oblique caudal. राइट इंटीरियर oblique caudal में हमें वेसल्स कुछ इस तरह से नजर आएंगी. लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स एंड एलईडी लेफ्ट इंटीरियर सेंडिंग. आरियोक्रेनियल व्यू. आरियोक्रेनियल में एलईडी सर्कमफ्लेक्स, पीछे जो होगी वो लेफ्ट में होगी. एलियो व्यू. एलियो व्यू में मशीन पेशेंट के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे चली जाती है. ना क्रेनियल होगा ना कॉर्डल होगा, ये होगा लेफ्ट इंटीरियर ऑब्लिक व्यू. आरसीए में हम इसी से कैथेटर एंगेज होता है और ये फर्स्ट व्यू होता है. लाइक आरसीए हमें बिल्कुल ऐसे नज़र आएगी, राइट कॉर्नरी आर्टरी इन एलियो व्यू. दिस वन इज एपिक्रोनियल व्यू फॉर आरसीए and this is aliocaudal view for RCA and this one is lateral view for RCA. इसमें एक और बहुत इम्पोर्टेंट व्यू होता है RCA के लिए, उसको बोलते हैं 30-30, जिसमें 30 एलियो एंड 30 क्रेनियल पेशेंट की RCA विजुलाइज करने के लिए किया जाता है. Here are some different terminologies. Occasionally, these are very important terminologies used in cath lab. Anterior-posterior, PA, posterior-anterior, supine, prone, lateral, cranial, caudal, head first, feet first, invasive pressure, non-invasive pressure, anterior-posterior, RAO, right anterior oblique, alio, left anterior oblique. और वो कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जो कि कैथ लैब में परफॉर्म किए जाते हैं. डेडिकेटेड कार्डियोलॉजी कैथ लैब में ये प्रोसीजर्स किए जाते हैं. कॉरोनरी एंजियोग्राफी, कॉरोनरी एंजियोप्लास्टी, पीटीएमसी, पीपीएम, राइट एंड लेफ्ट हार्ट, कैथेटराइजेशन और कार्डियक कैथ, पिक्टल इंसर्शन और पेरिकार्डियल टैप, एओर्टोग्राम, ग्राफ स्टडी, वेनोग्राम, चेक इंजेक्शंस, डिवाइस क्लोयर्स लाइक एएसडी, वीएसडी एंड पीडीए. थैंक यू वेरी मच. आज की हमारी यही प्रेजेंटेशन थी. होप ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आएगी. इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो वो काइंडली कमेंट बॉक्स में आप लोग राइट डाउन कर दीजिएगा. और एक रिक्वेस्ट आपसे है, आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी. बाय बाय.